Hello to all the students of AMCOM first year. I am Professor Sonia Digwa. So today we have discussed about our compulsory subject Management Accounting third chapter. As you know, we have completed first chapter, half portion we have almost completed. So first chapter will be depending on theoretical. Second chapter we have also completed, which will be depend on practical basis. So now we have to move forward to this chapter third. So in this session or online lecture which I have published on YouTube, we have started our third chapter, budget as a tool for decision making. Okay, so this chapter you have discussed about various factors and various elements. What is meant by budget, how budget we have to calculate, what is meant by budget, and why budget is needed on our day-to-day activities. So in this chapter we have discussed about various aspects of budget and also why it is essential whether we take any decision. So why budget can provide a data, can budget is providing flexible data or not. So in this chapter we have discussing these kinds of facts and all the facts. So as all of student you will know, this chapter is partially based on theoretical and practical, but first of all we have to make sure we have complete a theoretical part, as of all the student will know that your examination according to our university, this university can be also conducted on online basis. So first of all we have to more focus on internal assessment or a internal part of theoretical part. Okay, so now we have to start in this, as all the student will understand the chapter name, budget as a tool for decision making. Now I move forward to a next slide. In this slide you have to see the content which we have to study in this chapter. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये कंटेंट में क्या दिया गया है, इस चैप्टर के अंतर्गत आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट को सीखने को मिलेगा एंड अंडरस्टैंड को मिलेगा. ओके, सो इस कंटेंट्स में पूरे के पूरे में आपको मेंशन है इस चैप्टर में आपको कौन कौन से पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट की स्टडी करनी है. लाइक फर्स्ट, बजट मैनुअल. बजट मैनुअल क्या होता है, बजट मैनुअल से क्या सिस्टमैटिक प्रोसेस है, क्या है. सो वी हैव टू सी मोर फोकस ऑन बजट मैनुअल. सेकंड कॉन्सेप्ट कौन सा है, डिटेल कॉन्सेप्ट, बजट कमिटी एंड बजटरी कंट्रोल. सो हाउ बजटरी कमिटी किस तरीके से कितने प्रकार के डिपार्टमेंट्स रहते हैं और बजट को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसके वेरिफिकेशंस क्या है. सो वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन डिटेल वे. देन थर्ड, प्रिपरेशन ऑफ बजट. बजट कोई भी मतलब प्रिपरेशन ऑफ बजट्स में हम लोग क्या देखेंगे कि कितने टाइप्स के बजट रहते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बजट एंड व्हाई द एवरी काइंड ऑफ बजट इज़ नीडेड फॉर एवरी सिचुएशन. सो इसमें हम लोग इस प्रिपरेशन ऑफ बजट में देखेंगे कि एक पर्टिकुलरली बजट को किस तरीके से प्रिपेयर करा जाता है और कैलकुलेट किया जाता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट. सो वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड इन अ डिटेल वे. सो फोर्थली आप लोगों को फोकस करना है कॉन्सेप्ट्स को. फोर्थ है मास्टर बजट, हाउ वी कैलकुलेट मास्टर बजट. सो मास्टर बजट के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल कॉन्सेप्ट में वी हैव डिस्कस. नेक्स्ट, परचेज एंड सेल्स बजट, हाउ वी आर परचेसिंग, मतलब कोई भी पर्टिकुलर आइटम को परचेज करते हैं या आप सेल करते हैं पर्टिकुलरली कोई भी, तो उसका बजट किस फॉर्मेशन में कैलकुलेट किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है. वी हैव ऑल्सो कवर दिस कॉन्सेप्ट in detail in this chapter. And next, sixth concept, fixed and flexible budget. So fixed and flexible budget किस सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है, इन डिटेल वी हैव ऑल्सो डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट. एंड लास्टली, कैश बजट, why cash budget is needed and why cash budget is providing which kind of position related to financial or related to cash. तो मतलब पर्टिकुलरली हर एक बजट किस वे में कैलकुलेट किया जाता है, बजट का मीनिंग क्या है, बजट के इंट्रोडक्शंस, व्हाई बजट इज़ कैलकुलेटिंग, बजट क्यों ज़रूरी है हमें कैलकुलेशन के लिए. सो इस चैप्टर में हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में कवर अप करेंगे. और हर एक बजट जो हम कैलकुलेट करते हैं, हम बजट, व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग बजट, हम बजट किस प्रकार से क्यों बजट की प्रिपरेशन करते हैं और बजट
अगर हम लोग बनाने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, नुकसान होते हैं, उसके क्या हैं, ये सारी चीज़ें वी हैव डिस्कस इन एडवांस वे इन दिस चैप्टर. सो ये सारे कंटेंट्स थे जो आपको इस चैप्टर के अंतर्गत स्टडी करने हैं इन अ डिटेल वे. नाउ आई मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड में फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑल ऑफ यू स्टूडेंट विल सी in a detail introduction. Budget का introduction, first of all I will read that concept, then I explain you. Budget are plans dealing with the acquisition and use of resources over a specified time period. So why we are preparing budget? First of all एक बात है, पर्टिकुलरली आप बजट का कॉन्सेप्ट अगर अंडरस्टैंड करोगे, हर एक एक्टिविटी के लिए, डे टू डे एक्टिविटी के लिए, हर एक बिजनेस का अगर कोई बिजनेस स्टार्टअप करना हो या कोई घर के आपको ग्रोसरीज करने हो या फॉर्मेशन, किसी भी चीज़ में बजट की सबसे ज़्यादा नीडेड है. बिकॉज बजट यू कैन प्रिपेयर फॉर टाइम पीरियड. मतलब आप बजट क्यों कैलकुलेट करते हैं? बिकॉज हम एडवांस में उसकी प्रिपरेशन करते हैं ताकि अगर हम लोग कोई बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो तो पर्टिकुलरली मशीनरी खरीदने के लिए, प्लांट्स खरीदने के लिए, लैंड खरीदने के लिए आप उसकी पहले क्या करोगे? प्लानिंग करोगे, उसका बजट निकालोगे कि बाहर उसका रेट कितना जाएगा. फिर उसको आप कैलकुलेट करने के बाद यू कैन डायरेक्टली गो एंड परचेज फॉर अ पर्टिकुलर time basis. So budget is means that which we have calculate before in advance. तो बजट क्या है? एडवांस में प्रिपेयर करा जाता है कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए या कोई भी पर्टिकुलर आइटम को खरीदने के लिए. आप कोई भी वस्तु या चीज़ें खरीदते हो, अगर आप बजट क्या बना रहे हो उसका, तो वो आपको फेवरेबल भी दे सकती है और उसका एडवांस भी हो सकता है बजट. सो बजट हमें एक पर्टिकुलरली प्लानिंग के तहत अगर आप बजट को कैलकुलेट करते हो तो इससे आपका पर्टिकुलरली फ्यूचर प्रीमाइसेस में बिजनेस भी ग्रोथ होता है. फॉर अ कैलकुलेटिंग अ बजट, फॉर प्रिपेयरिंग अ बजट, अगर आप एडवांस में एक साल के आगे की प्लानिंग करते हो, मतलब इन अ वेरी लार्ज बेसिस, सो यू कैन ऑल्सो मेक अ वेरी गुड impact on the budgetary basis. तो budget is more flexible to understand whether अगर आप कोई particular item purchase करो, whether you start up a business, whether you forming any kind of household groceries, any kind of resources while you purchasing or selling, you are needed to prepare a budget. So budget क्या है? In advance में preparation किया जाता है. That is the meaning of budget. In next slide we have also discussed, सिंपल फॉर्म में है, बजट क्या कैलकुलेट करता है? रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को फॉर अ स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड टाइम. ये याद रखना है सभी व्यक्ति को कि बजट पहले से प्रिपेयर करना रहता है. बजट आप बाद में कैलकुलेट, कोई आइटम को खरीद रहे हो या बिजनेस को सेटअप कर रहे हो या पर्टिकुलरली अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या कुछ भी करना है तो उसके लिए उसकी प्लानिंग करनी होती है. और प्लानिंग अगर आप कॉस्ट यूटिलाइज कर रहे हो, you can investment utilization, you can all think utilization, so you have to prepare a particularly budget. So why in budget से आप लोगों को क्या पता चलता है कि अगर आप किसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई मशीनरी में खरीद रहे हो, कोई मशीन खरीद रहे हो, तो उसकी आपको इनकम कितनी होगी. अगर आप ये 5 साल तक के लिए पर्टिकुलर मशीन को खरीद रहे हो तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो पर्टिकुलरली वॉट एवर द अमाउंट, सो वो आपको कितना एक्सपेंसेस देगी, कितना उसका नफ़ा होगा, नुकसान होगा, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस. सो इससे आपको बजट कैलकुलेट करने से, बजट के को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इससे आपको ये पता चलता है कि उसकी इनकम कितनी होगी और उसका रेवेन्यू कितना होगा. और बजट के यानी कि आगे तक के लिए फॉर अ फ्यूचर पीरियड टाइम यू हैव टू कैलकुलेट बजट. सो ये बजट ना कि आप लोग पर्टिकुलरली घर वगैरह में ये कैलकुलेट नहीं करेंगे. वी हैव ऑल्सो बहुत सारी कंपनीज हैं जो बजटरी कंट्रोल, मतलब हर एक पर्टिकुलर डे टू डे एक्टिविटीज़ without budgeting we cannot expect, we cannot calculating. And for financial period of time, अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो फॉर अ डिफरेंट पीरियड, सो यू हैव टू कैलकुलेट अ बजट. सो बजट यहाँ पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि कोई भी आप पर्टिकुलरली खुद की कंपनीज प्रिपेयर करती है, पर बजट कैन बी कैलकुलेट बाय अ मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, बिजनेसमैन,
और इंडिविजुअल पर्सन जो घर में काम करने वाली एक हाउस होल्ड लेडी है वो भी अपने पर्टिकुलरली 1 महीने के बजट की प्लानिंग करती है फॉर टू परचेसिंग, और बिजनेसमैन ताकि उनका बिजनेस आगे तक के लिए ग्रोथ हो सके, इन फ्यूचर ग्रोथ हो सके, तो उसके लिए उसके पर्टिकुलरली क्या उनको मैन्युफैक्चरिंग, अगर कोई कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंपनी है तो उसमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा और इन फ्यूचर उसके डेवलपमेंट कितनी होगी. सो दिस आर द थिंग्स विच वी हैव. वाई वी आर एस्टिमेटिंग, किसकी वजह से हम एस्टिमेट कर सकते हैं, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ बजट. और ये याद रखना है, बजट कभी भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो स्पेसिफिकली फ्यूचर के लिए कैलकुलेट करेंगे. तो बजट प्री डिटरमाइंड, वी हैव कैलकुलेटिंग फॉर अ प्री डिटरमाइंड बेसिस बिकॉज इट रिक्वायर्ड फॉर अ फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम. तो बजट आप कभी भी कैलकुलेट करोगे इन एडवांस. यू वेदर यू कैलकुलेटिंग बजट, यू कैन कैलकुलेट इन एडवांस फॉर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अ फॉरेन. और कभी भी अगर आपको बजट कैलकुलेट, अगर आप बजट कोई भी कंपनी कैलकुलेट करे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति कैलकुलेट करता है तो उससे उसे क्या फ़ायदा होता है, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपरली होगी, उसका पीरियड, मतलब कभी भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसमें कॉस्टिंग बचेगा, तो उससे वो आगे फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसको मिल सकता है. एंड दे हैव टू ग्रेट सक्सेस इन देयर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट. बजट बनाने से एज ऑफ ऑल यू नो कि आप पर्टिकुलरली एक देश का बजट बनता है और वो देश का बजट कैलकुलेट करने के बाद यू नो दैट डाटा के ऑन 2022 का इंडिया का बजट अराउंड 19 बिलियन वी हैव कैलकुलेटेड. 19 बिलियन तक की प्लानिंग है बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन. उन्होंने ये प्लानिंग करी है कि 19 बिलियन तक करोड़ तक इंडिया का बजट इस साल 2022 का रहेगा. तो ये क्या है, एक एस्टिमेशन है कि पूरे साल में 19 बिलियन तक का कॉस्ट यूटिलाइजेशन करना है, हमारी कंट्री को चलाना है. और ये 19 करोड़ किस किस इन्वेस्टमेंट, 19 बिलियन, सॉरी नॉट इवन से, सो ये यानी कि अराउंड इसका जो पर्टिकुलरली किस में इन्वेस्टमेंट करना है, इंडिया को कौन सी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना है. तो ये फाइनेंस मिनिस्टर क्यों बजट प्रिपेयर करता है, फॉर टू नो फ्यूचर प्लानिंग के लिए, फॉर टू नो द बजट ऑफ अ कंट्री, फॉर टू मेक अ प्रोवाइड अ रेवेन्यू के कितना कंपनी की कंट्री की इनकम होगी, एक्सपेंसेस होंगे. दैट्स वाई द कंट्री और अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट और बिजनेसमैन और इंडिविजुअल दे आर कैलकुलेटिंग एंड प्रिपेयरिंग अ बजट. होपफुली आप लोगों को यूटिलाइज हो गया होगा. बजट एडवांस में प्रिपेयर किया जाता है और बजट प्रिपेयर करने से पर्टिकुलरली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो या बिजनेसमैन हो या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हो या जो पर्टिकुलरली बिजनेस चला रहा हो या प्रोफेशन में काम कर रहा हो, कोई भी हो, अगर वो बजट प्लान करता है तो उससे उसकी इनकम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा. ओके, एंड दे हैव टू अचीव अ ग्रेटर सक्सेस बिकॉज ऑफ प्लानिंग ऑफ बजट. नो यू हैव अंडरस्टैंड कि बजट किन किन में फ़ायदेमंद रहता है. बजट मॉनिटरी और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है. सेकेंडली टाइम पे अगर आप लोगों ने पहले पर्टिकुलरली वैल्यू उसकी सोची हो, अगर आपने फेवरेबल में सोचा हो कि हाँ अगर ये ग्रोसरी का रेट पर्टिकुलरली इस प्रोडक्ट का रेट अभी के मैं कन्वेंशनली सोच रहा हूँ इट कैन बी 150, और जब मैंने मार्केट में परचेज़ करने के लिए वो गया तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी में मुझे वो प्रोडक्ट पड़ा 120 रुपये में. तो अगर बिकॉज ऑफ आपने प्लानिंग करी थी, बजट प्लान करा था 150 का उसकी वैल्यू, और वो आपको बजट कैलकुलेट करने से, तो ये आपको बजट कैलकुलेट करने से क्या फ़ायदा हुआ, 30 रुपीज़ ऑफ बजट फेवरेबल ऑन द बेसिस ऑफ एक्वाजेशंस. एंड थर्ड, एक्वाजेशन ऑफ 1000 ऑफ मटेरियल. बहुत सारे मटेरियल को कैलकुलेट करने के लिए, उनकी वैल्यू को कैलकुलेट प्री डिटरमाइंड बेसिस पे कैलकुलेट करने के लिए बजट को कैलकुलेट किया जाता है, ताकि अगर आप कैलकुलेट मतलब जो मटेरियल हमें कितने टाइप का मटेरियल लगेगा, कितनी क्वांटिटी में लगेगा मटेरियल, सो ऑल द क्वांटिटीज़ एंड एक्वाजिशन, उन सब चीज़ों को पर्टिकुलर आइटम्स को कैलकुलेट करने के लिए, एक्वायर्ड करने के लिए कितना मटेरियल जाएगा, कितना रॉ मटेरियल क्वांटिटी कितनी एक्सपांड होगी, हाउ मच द रेट. सो इसकी बजट के प्लानिंग करने से यू कैन ऑल्सो
make a rate of interest higher to cash comparative whether you calculating the budget on the basis of because of help of budget you can also utilize how much the material acquired and how much the material will go for a long term basis. So इसकी वजह से आपको 1000 ऑफ क्वांटिटी का मटेरियल अगर आपने बजट कैलकुलेट किया हो तो आपको मटेरियल खरीदने में भी फ़ायदा होगा और कंपनी को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी बजट से क्या फ़ायदा होगा, बजट बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ बजट वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं 1000 ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जितनी क्वांटिटी में उनको अगर बजट कैलकुलेट किया हो मटेरियल आपने मतलब एक्वायर्ड लेस रेट में आपने परचेज़ किया हो तो इससे कंपनी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकती है और उस बजट प्रिपेयर करने से उनको रेट कम उसका मिलेगा, मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी, बिजनेस कैन बी फ्लेक्सिबल एंड लास्ट कैन बी इट कैन बी अ बजट के से कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, इट कैन बी अटेंडेंस ऑफ बेसबॉल गेम. ओके, सो यू अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन ऑफ बजट. सो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया बजट का इंट्रोडक्शन. देन मीनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड दैट कॉन्सेप्ट. Such a budget helps and you focus on setting aside of money for growing your business, not merely for surviving. Okay, कंपनी पर्टिकुलरली अगर बिजनेसमैन अगर बिजनेस कर रहा है तो वो उसका बजट वो क्यों कैलकुलेट करेगा, ताकि वो पर्टिकुलरली 1 साल तक का अगर वो बजट कैलकुलेट कर रहा है ताकि उसका बिजनेस कितना ग्रोथ हो रहा है ये चेक करने के लिए वो पर्टिकुलरली बजट प्रिपेयर करेगा, पर्टिकुलरली अ बिजनेस में. और उसका मेन फोकस क्या रहेगा कि वो बजट अगर कैलकुलेट कर रहा है तो ताकि उसका बजट उसकी ऑल प्लानिंग मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेलिंग से परचेसिंग से ऑल प्रोसेसिंग में उसका जो प्रोडक्ट वो बिजनेसमैन कर रहा है तो उसका बजट उसको ना कि फ़ायदा दे बिजनेस में, उसकी बॉटम लाइन से पर्टिकुलरली एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक के लिए कितना पैसा लगेगा और उसको फ्यूचर के लिए कितना रिक्वायरमेंट जाएगा, ये चीज़ों को यूटिलाइज करने से एक बिजनेसमैन को क्या फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. बिकॉज वो बिज़नेस पर्टिकुलरली एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए कर रहा है ताकि उसको नुकसान नहीं हो, फ़ायदा हो. तो इसी के लिए बजट उसको क्या कैलकुलेट करने में फ़ायदा देती है कि उसकी कितनी इनकम हो रही है, कितने कितने पर्टिकुलर आइटम्स में उसने इन्वेस्टमेंट करा है, उसने डिसीजन लिया है पर्टिकुलरली आइटम्स को परचेज करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए या सेल करने के लिए कोई प्रोडक्ट को. सो बजट यूटिलाइजेशन से उसको मेन फोकस कहाँ फ़ायदा होता है ताकि उन फ्यूचर उसको बजट कैलकुलेट पर्टिकुलर आइटम से उसको ये फ्यूचर प्लानिंग से दे कैन ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर आइटम एंड दे कैन ऑल्सो एक्वायरिंग हाउ मच द पर्टिकुलर आइटम विल बी चार्ज. और मेन मतलब कोई भी बिजनेसमैन अगर अपना बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है तो उसका मेन फोकस क्या है, किसके लिए है, दे हैव टू मेन फोकस टू सेटअप अ बिजनेस फॉर अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. सो बजट से अगर कोई बिजनेस स्टार्टअप हो रहा है तो बजट का बिजनेस का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, टू अर्न अ प्रॉफिट. बिजनेस कोई भी व्यक्ति क्यों करता है, प्रॉफिट कमाने के लिए. तो बजट उसको किसके लिए फ़ायदेमंद देता है, फॉर टू नो द फॉर टू अंडरस्टैंडिंग द डिटेल वे ऑफ अ पर्टिकुलरली फ्यूचर में, ताकि उसका बिजनेस कितना ग्रोथ हो रहा है, कितना उसने जिस तरीके का बजट बनाया था फ्रॉम द स्टार्टिंग में तो वो स्टार्टिंग से उसका बजट प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं है. तो ये बजट कैलकुलेट करने से एक बिजनेसमैन का ये सारे फ़ायदे होंगे कि उसका बिजनेस फ़ायदे में जा रहा है कि नुकसान में. तो अगर वो बजट कैलकुलेट करेगा तो उससे पता चलता है कि उसका बिजनेस कितना प्रतिशत कितना परसेंटेज ऑफ ग्रोथ में है, क्या लॉस में है. ओके, सो दैट्स वाई दे आर कैलकुलेटिंग अ पर्टिकुलर बिजनेसमैन अ बजट. ओके, सो ये आप लोगों ने मीनिंग में अंडरस्टैंड करा. देन हाउ कैन वी बजट यूजिंग इन टू कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग. बजट हमें डिसीजन मेकिंग के लिए जब हम बजट को कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे जब हम कोई भी प्रकार का डिसीजन लेंगे तो बजट हमें क्यों फ़ायदेमंद रहेगा. ओके, वाई, बिकॉज ऑफ वी आर प्लानिंग. हमने एक प्रॉपरली प्लानिंग करी है कि हाँ
ये अगर आप कोई ग्रोसरी परचेज कर रहे हो, पर्टिकुलरली घर के लिए ग्रोसरी परचेज कर रहे हैं, तो आपने पर्टिकुलर इस आइटम का ऑयल का रेट आपने निकाला होगा अराउंड 200 रुपये किलो या 1 किलो। तो उसका आपने क्या है करा, उसका रेट एस्टिमेट करा, यू हैव टू प्लान। बट जब आप मार्केट में जाओगे तो उसका आपको वैल्यू क्या मिलेगा, 180। तो आपको अगर वो बजट आपने बनाया था तब आपको पता चला कि ये मैंने आइटम सारे ग्रोसरी आइटम्स की वैल्यू टोटल बजट कितना बनाया था, 6000 का। और मुझे टोटल आइटम जब मैंने मार्केट में परचेज करने के बाद, सारे आइटम खरीदने के बाद मेरा बजट कितना हुआ, 5800। सो 200 क्या होगा, इट कैन बी फेवरेबल, मतलब बजट से मेरे कम में आया। अगर आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो इट कैन बी अनफेवरेबल बिकॉज ऑफ प्लानिंग। तो बजट को अब जब आप कैलकुलेट करते हो, डिसीजन मेकिंग करते हो, तो वो आप क्या कर रहे हो, पहले ही उस आइटम की प्लानिंग कर रहे हो कि क्या क्या आपको चीज़ें व्यक्ति को खरीदनी है और किस तरीके के उस वैल्यू को कंट्रोल में, रेट में कितने कंट्रोलिंग रेट में है। सो ये पर्टिकुलरली अगर कंपनी का एक मैनेजर है, सो जब वो बजट कैलकुलेट करता है तो उसकी क्या है, मैनेजर क्या सबसे पहले फोकस करता है, दे हैव टू फोकस, प्लान करता है पर्टिकुलरली कि हाँ कंपनी को कितना रॉ मटेरियल एक्वाजिशन लगेगा बनाने के लिए, पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना प्रतिशत उसको मटेरियल लगेगा, तो उसकी क्या करता है वो प्लानिंग। फिर जब वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो प्रोडक्ट जाता है रॉ मटेरियल खरीदने के बाद, तो उस मटेरियल को बनाने में कितने स्टाफ मेंबर लग रहे हैं, कितना उसको मैन्युफैक्चरिंग असिस्मेंट लग रहा है, तो ये सारे कंट्रोलिंग प्रोसेस, मतलब सारे रिसोर्सेज को, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए पर्टिकुलरली मैनेजर किस पे फोकस देता है, बजट पे, बिकॉज दे आर फोकस। मतलब मैनेजर क्या बनाएगा कि पहले उस प्रोडक्ट की वैल्यू को एस्टिमेट करेगा कि हाँ मटेरियल पहले वो खरीदेगा, उसकी मटेरियल को खरीदने की प्लानिंग करेगा, फिर उस मटेरियल को बनाने के लिए कितना वर्कर का एक्वाजिशन है, वर्कर कितने लगेंगे और कितने टाइम ड्यूरेशन में, और उसका कंट्रोलिंग, मतलब कौन कौन सी मशीनरी को कितना कंट्रोल में बनाना। तो ये बहुत सारी कंपनी मैनेजर, इसीलिए दे हैव टू कैलकुलेट द बजट फॉर टू प्लानिंग। मतलब कंपनी का मतलब ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, कोई भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव का प्रॉफिट अचीव करने के लिए कभी भी बजट वी हैव टू कैलकुलेटिंग द मोस्ट ऑफ द बजट। ओके, सो पर्टिकुलरली कोई भी बिजनेस हो या कंपनी हो, उसका मेन उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट कमाना, और बजट से ये सारी चीज़ें अचीवेबल है बिकॉज बजट वी हैव प्रिपेयरिंग इन आवर एडवांस। देन प्रोसेस ऑफ बजटिंग, द प्रोसेस ऑफ बजट डेवलपमेंट, बजट ने क्या क्या चीज़ें डेवलप करी हैं। अगर पुराने टाइमिंग पे देखें, ट्रेडिशनली बजट इज़ अ बॉटम प्रोसेस डिपेंडेंट ऑन डिपार्टमेंटल मैनेजर to provide detailed plans for the upcoming month, quarter or year. ओके, सो ट्रेडिशनली अगर पुराने ओल्ड टाइम्स में हम देखें, पुराने के लोग बजट कैसे प्रिपेयर करते हैं, बॉटम प्रोसेस से प्रिपेयर। जैसे मैनेजर बजट बनाएगा, फिर उसको प्रोवाइड करेगा कि हाँ 1 महीने का कंपनी को क्या करेगी, 1 महीने का इतना बजट होगा, 1 साल का इतना बजट होगा, 6 महीने का इतना बजट होगा। तो ये बजट क्या है, पर्टिकुलरली आप कैलकुलेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर बेसिस, दैट यू हैव टू कैलकुलेट ऑन टाइम बेसिस, पीरियड बेसिस, मंथ का कितने मंथ का बनाना है, क्वार्टर का बनाना है, 6 मंथ के लिए बजट प्रिपेयर करना है, 4 मंथ के बजट प्रिपेयर या 1 साल का बजट प्रिपेयर करना है। तो ये क्या है, बेसिकली बजट के कैलकुलेशन है कि आप अगर घर का बजट बना रहे हो तो आप 1 मंथ के लिए ग्रोसरी का बना रहे हो या 3 मंथ के लिए बना रहे हो, तो कंपनी हर एक चीज़ों को फोकस करती है कि बजट 1 मंथ का बनाना है, प्रोसेस का ईयर का बनाना है या क्वार्टर का, 6 मंथ्स का। सो दे आर फोकसिंग। तो मैनेजर क्या करते थे, दे आर प्रोवाइडिंग प्लान, तो वो प्लानिंग करते थे अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग विद द हेल्प ऑफ बजट। सो दिस आर द प्रोसेस ऑफ बजटिंग। देन दिस वॉज अवर लास्ट कॉन्सेप्ट। ये हमारा आई थिंक वी हैव टेकिंग अ लॉट्स ऑफ इनफ टाइम टू अक्वायर। सो हाउ मेनी कॉन्सेप्ट वी हैव कवर, वी हैव कवर द इंट्रोडक्शन। पहले हम लोगों ने ये चैप्टर इस ऑनलाइन लेक्चर में वी हैव डिस्कसिंग स्टार्टेड अवर 3rd चैप्टर बजट एज अ टूल फॉर डिसीजन मेकिंग। सेकेंडली वी हैव टू डिस्कस द कंटेंट कि इस चैप्टर के अंतर्गत आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करना है।
देयर आर 7 कॉन्सेप्ट विच यू हैव कवर इन दिस चैप्टर. देन हम लोगों ने किस पे फिर हम लोगों ने डिस्कस करा द इंट्रोडक्शन ऑफ बजट. इंट्रोडक्शन, मीनिंग, हाउ बजट वी कैन कॉल. अगर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं हम लोग तो बजट हमें क्यों फ़ायदेमंद है. सो मोस्ट ऑफ मैनेजर ये फोकस करते थे टू कंट्रोल अ पर्टिकुलरली प्राइस or a manufacturing acquisition. So that's why they have achieved a company's objective. That's why they are calculating the budget process. ओके. एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बजट की डेवलपमेंट किस प्रोसेस किस तरीके से होती है. अगर पुरानी टाइमिंग में देखें, ट्रेडिशनल टाइम बेसिस पे देखें तो बजट मैनेजर प्रिपेयर करता था और वो मतलब कितने मंथली प्रिपेयर कर सकता था, क्वार्टर में प्रिपेयर कर सकता था और ईयरली बेसिस पे. सो दे आर प्रोवाइडिंग अ पर्टिकुलरली टाइम बेसिस पीरियड ऑफ बजट. सो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आज अचीवेबल करें. इन नेक्स्ट सेशन वी हैव डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बजट. So hopefully you understand all the concept. If you have any query regarding this session or lecture, you can write down in comment box your queries and reviews whatever. And for attendance, all the students have to follow the procedure. Like this video, subscribe my YouTube channel, and also in comment box mention your query regarding if you're not understanding any concept which I have tell you, which I have also we have discussed in this session. So you can also mention in comment box your queries, and in comment box also mention your name, roll number, class and your specialization for attendance of a particular student. So thanking you for all student for hearing me in this lecture. So thank you to all.